امام صادق اور نہر القبا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ گلی اس سے بھی پتلی گلی ہے اور وہی راستہ جانے کا ہے، وہی راستہ جانے کا ہے، وہی راستہ آنے کا ہے۔ چلیں پہلے یہیں سے زیارت پڑھ لیتے ہیں جناب علی اکبر کی زیارت مختصر، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے کی روان زیارت کی نیت کر لیں۔ زیارت پڑھتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، آبا اجداد کی طرف سے، مرحومین دوستوں جان پہچان والے ایسے حضرات کہ جن کے دلوں میں آنے کی تمنائیں ہیں، ان سب کی طرف سے قربت اللہ۔ میں کم ادھر گھما لیے، نیچے طرف نہیں جائے، ادھر گھمائیں اس طرف سامنے، ہاں اس طرف سامنے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرضية بك علينا وعلى جميع المسلمين، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، وابرأ إلى الله وإليك منهم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کریں شہزاد علی اکبر پر جو رسول کی شبیہ تھا، رسول کی نشانی ملتا ہے۔ جب کبھی اکبر نکلتے تھے راستوں میں ہجوم لگ جاتا تھا اکبر کو دیکھنے کے لیے۔ زہرا کا چاند اکبر، حسین کی آنکھوں کا نور اکبر، لیلا کی کمائی اکبر، یہ سرزمین کربلا۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا۔ میری مائر بہنیں اور میرے بزرگان بڑے غور سے سننا، آپ سبھی صاحب اولاد ہو، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ ملتا ہے ایک مرتبہ امام حسین جناب علی اکبر کے ساتھ مدینے کے کسی کنارے دیہات کی طرف سے گزر ہو رہا تھا۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو ایک اعرابی، ایک عرب دیہاتی وہاں سے سامنے سے گزرتا ہے۔ دیکھا آقا حسین جا رہے ہیں، آ کر آقا حسین کو سلام کیا اور آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے آقا حسین، آپ کریم ابن کریم ہیں، آقا سنا ہے کہ آپ سے جو بھی مانگا جاتا ہے دے دیتے ہیں۔ مولا کہتے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اے آقا میرے اولاد نہیں ہے، آقا مجھے اولاد چاہیے، میرے مولا میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ مولا فرماتے ٹھیک میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے اولاد دے دے۔ کہتے نہیں آقا، جو آپ چاہ رہے ہیں مجھے وہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا تمہیں چاہیے؟ وہ عربی کہتا ہے اے میرے آقا مجھے اکبر جیسا بیٹا چاہیے، مجھے اکبر جیسا بیٹا چاہیے مولا، مولا میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے
अकबर जैसा खूबसूरत बेटा दे दे। हुसैन कहते हैं ठीक, मैं दुआ करूंगा, खुदा मुझे मेरी ज़बां को टालेगा नहीं, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे दे। लेकिन तुझसे एक सवाल है, तुझसे एक सवाल है, अगर अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे दे, अल्लाह अगर तुझे अकबर जैसा बेटा दे दे, ये बताओ अगर अकबर जैसा बेटा जो परवरदिगार ने तुम्हें दिया है, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो क्या करोगे? कहता मौला जान दे दूंगा, अपने बच्चे की फरमाइश को पूरा करूंगा। हुसैन चुप। कहते एक सवाल और, अगर अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे दे और उसके पैरों में अगर कांटा चुभ जाए तो क्या करोगे? मौला अगर अल्लाह ने मुझे अकबर जैसा बेटा दे दिया, अगर उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, मौला मैं अपनी आंखों में कांटा चुभना गवारा करूंगा, लेकिन अकबर जैसे लाल के कदमों में कांटा चुभना गवारा न करूंगा। मौला अगर अकबर जैसा बेटा मुझसे कुछ मांग दे, मैं जिंदगी बेच दूंगा और अकबर की उस तमन्ना को पूरा करूंगा। कहते हुसैन अब रोक न सके, हुसैन ने चीख मारी, ये मेरे भाई यही अकबर होगा, अरे करबला का बन होगा। मेरा अकबर मुझसे कुछ न मांगेगा, एक कतरा एक पानी का सवाल करेगा। मैं हुसैन इतना मजबूर होऊंगा कि अपने लाल को एक घूंट पानी भी। अल्लाह अकबर। दिल पुरसा अकबर का पुरसा है, दिल पुरसा खुद साहिब आज़ा करबला जिसकी है वो साहिब आज़ा है, अकबर का पुरसा देना है। कहते मौला फरमाते हैं मेरा अकबर मुझसे एक घूंट पानी का सवाल करेगा, मैं हुसैन इतना मजबूर। ए मेरे भाई तूने कहा अगर अकबर जैसी औलाद हो जाए और उसके पैरों में अगर कांटा चुभ जाए, अरे मैं आंखों में चुभना गवारा करूंगा, लेकिन उसके पैरों में चुभना गवारा न करूंगा। अरे यही मेरा जवान होगा, सीने पर बर्ची होगी। बाप इतना मजबूर होगा कि मैं कुछ कर न सकूंगा। और मिलता है रवायत के फिक्रे हैं, रवायत के जुमले हैं, चंद जुमले अर्ज करूंगा। यही वो गलियां हैं, यही वो मकाम है। अरे इन जगहों पर बड़ी आसानी से हम पहुंच गए हैं। अरे वो जगह है जहां हुसैन की उंगलियों के बल अरे चलकर अकबर के पास गए थे। अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। रवायत का जुमला है, मकतल का फिक्रा है कि जिस वक्त जनाब अली अकबर ने इजाजत ले ली थी ना, जब अकबर जाने लगे थे तो अकबर जब बढ़ते जा रहे थे तो इमाम हुसैन ने रुखसत तो कर दिया था। अकबर आगे बढ़े थे, अभी कुछ दूर बढ़े ही थे, अकबर को आहट महसूस हुई कि पीछे से कोई चला आ रहा है। मुड़कर देखा ज़रीफ बाप है, अरे कब्र को थामे चला रहा है। अकबर रुक गए, बाबा बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे बाबा, ए बाबा अरे फिर क्यों आते हैं? अजरकुमल अल्लाह, अजरकुमल अल्लाह। अजीब नफ्सियाती जुमला हुसैन ने कहा, अजीब नफ्सियाती जुमला कहा। हुसैन कहते हैं मेरे लाल अकबर, ए मेरे लाल अकबर, अरे काश की तू भी साहिब औलाद होता, काश की तू भी साहिब औलाद होता। अरे तुझे मालूम होता कि औलाद का दर्द क्या होता है। हाँ हाँ मिलता है जनाब अली अकबर चले। अरे यही मकाम है अंदर, यही वो जगह है अंदर जाकर कि जहां पर अकबर पहुंचे। अभी कुछ देर गुजरी थी, एक ने ना पूछी बाबा अकबर का सलाम आखिर ले लो, अकबर का सलाम आखिर ले लो। अरे मेरी माँ और बहनों मुझे माफ करना। अरे मिलता है इमाम हुसैन अरे जिस जगह पर बैठे थे आवाज को सुना, खैमे में खड़े होते हैं। अरे पैर लर्ज़े हुसैन के, पैर लर्ज़े हुसैन के जमीन पर फिर बैठ गए। हुसैन आगे बढ़े, सामने टकराते हैं, दाएं जाते हैं फिर टकराते हैं, बाएं जाते हैं फिर टकराते हैं। ज़ैनब ने पूछ लिया भैया क्या ढूंढ रहे
कहते इमाम हुसैन पहुंचे, इन्हीं मकामात पर आवाज देते जाते हैं, आईना आईना अली अकबर, आईना आईना अली अकबर, ए मेरे लाल कहाँ आवाज दो, ए मेरे लाल कहाँ आवाज दो। एक आवाज आई, ए बाबा अकबर यहाँ है। अब जो हुसैन पहुंचे, क्या देखा अकबर, अरे एक हाथ सीने पर है, एड़िया रगड़ रहे हैं, एड़िया रगड़ रहे हैं। इमाम हुसैन किनारे पहुंचने के बाद कहते हैं मेरे लाल अली अकबर, ए मेरे लाल अली अकबर, ये बता दे मेरे लाल, तूने ये हाथ सीने पर क्यों रखा है। बाबा कुछ नहीं जानते हैं अकबर ना, सुबह से देख चुके हैं, सुबह से देख चुके हैं, अरे जवान का गम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अकबर देख रहे हैं, बाबा पूछे जा रहे हैं, बाबा पूछे जा रहे हैं, मगर इमाम हुसैन को जवाब नहीं देते। जब बहुत इसरार बढ़ा, जब बहुत इसरार बढ़ा तो एक मर्तबा अकबर फरमा देते हैं, अकबर कहते हैं ए बाबा एक बर्छी है, एक बर्छी की अनी है जो मेरे सीने में लगी है। बाबा अनी मेरे सीने में टूट गई है, अरे जब सांस लेता हूँ तो अनी चुभती है, जब सांस छूटती है तो अनी चुभती है। मौला फरमाते हैं अकबर सब्र कर मेरे लाल, अभी मैं बर्छी की अनी निकालता हूँ। कहते बाप 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 है, बाप बाप है, बाप बाप है, आप भी साहिब औलाद है। खुदा किसी को ये गम न दे, खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए जो हुसैन ने देखा। अरे मुकातिल के जो औलाद है। इमाम हुसैन कहते हैं अकबर क्या बात है बेटा, तेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही। बाबा कुछ नहीं, ए बाबा एक ख्वाहिश है बाबा, ए बाबा अरे सुगरा से वादा करके आया था, सुगरा से वादा करके आया था बाबा, सुगरा मेरी इंतजार कर रही होगी। बाबा अगर हो सके तो मुझे सुगरा को दिखा दो। अरे रवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन ने अपनी उंगलियों को आसमां की तरफ बढ़ा दिया, एक बार इनके दरमियान देखो। अकबर ने अब जो देखा, बाबा नाना का रोजा तो नजर आ रहा है मगर मेरी सुगरा नहीं दिखती। हुसैन ने उंगलियों को घुमाया, ए मेरे लाल सुगरा दिखी नहीं बाबा, साइने खाना तो नजर आता है मगर मेरी सुगरा नजर नहीं आती। हुसैन ने जैसे ही उंगली घुमाई, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, अरे वो रास्ता दिख रहा है जहाँ से काफिला गया था। ए बाबा एक सियाही नजर आ रही है, एक सियाही नजर आ रही। अब जो अकबर ने गौर किया, क्या देखा सुगरा, अरे जहाँ से काफिला गुजरा था दोनों हाथों को फैलाए जमीन पर लेटी हुई। ए भैया अकबर, ए भैया वादा करके गए थे। अकबर ने कहा सुगरा मुझे माफ करना, तेरा अकबर आ न सका। सीना कले